Hello and welcome to MBBSC Adda. We have come with a very unique series, that is the MCQ series of Rojgar Nirman. Now, this Rojgar Nirman newspaper is the official publication of MPPSC government, and it is basically to target whom, the aspirants of MPPSC, and every week's issue has certain MCQs. So we have tried to make a list of these MCQs so that you could practice these MCQs, because there is a high probability that these MCQs would be asked in the upcoming prelims examination. So these are actually in Hindi, but with our efforts we have translated into English. So it's a humble request to watch this video till the end, because these questions are going to be highly beneficial for you, as there are high chances that these questions would be asked in your coming prelims examination. So let's now begin with our session. So the very first question is, who discovered the Bharhut Stoop in Satna? Cunningham, General Rowlett, Dangerfield, or James Alexander? So who discovered the Bharhut Stoop? So it was discovered by Alexander Cunningham. So the answer is A, Alexander Cunningham, and he was also the person who had established the Archaeological Survey of India. Okay, he's also called as father of archaeology in India. So this question has been asked around 15 or in 16 PT, who is the father of Indian archaeology, that is Alexander Cunningham. So next question, which stoop is considered as Dharma Jivak Stoop या Dharmajika Stoop? So this is the Sarnath Stoop is considered as what? The Dharmarajika Stoop. So the Sarnath Stoop is called as Dharmarajika Stoop because it is the largest, one of the largest stupas, and it was built when Dhamma was being propagating. So it is called as what? The Dharmarajika Stoop. Next question, Vikramshila University was established by whom? Who established the Vikramshila University? So it was established by Dharampal, who was a Pala ruler, and the founder of this Pal dynasty was Gopal. Apart from these, Shilbhadra is what? He's a Buddhist scholar. So if you go for the elimination technique, there are various methods to solve what? These MCQs. So Shilbhadra is a Buddhist scholar and Kumar Gupt is a Gupta ruler. So you can also easily chalk out which is the answer of this. So let's move towards next question. So next is Kaitha and Navda Toli were what types of sites? Now these Kaitha and Navda Toli, they both are in Madhya Pradesh, and it is asking which type of sites are they? Are they Paleolithic, Mesolithic, Chalcolithic, or none of these? So which kind of sites are they? So they are Chalcolithic sites. Okay. Paleolithic means what? Paleos plus lithic, meaning the old Stone Age. Next one is Mesolithic, Meso plus lithic, and the new Stone Age, sorry, the middle Stone Age. Or Chalcolithic means copper and iron. So they are of what? Sorry, copper and stone. So they are of what? Chalcolithic period. Next question, which is the first composition of Sanskrit language grammar? So which of these following books is the composition of Sanskrit language grammar? Is it Pingal Shastra, Ashtadhyayi, Arthashastra, or Gargi Samhita? So the first composition on Sanskrit grammar is what? Ashtadhyayi. It is being written by whom? By Maharshi Panini. It is also the earliest book on what? Sanskrit grammar. Arthashastra is a very famous book written by Kautilya. It is on what? It is on administration. This is written by Pingal. Gargi Samhita. It is a book on astronomy or astrology. So these are extra details which you can remember regarding these books. So in case if you have to eliminate or you have to find the right answer, if you are not exact confident about the answer which you are answering in the present examination, so you can use this technique where you can relate different facts with the question and you can get the correct answer. So the next question is, who wrote the book Natural History? So it is a very famous book, Natural History. Who has written this book? It is Pliny. Pliny has written this book. Apart from this, you have other three options: Ptolemy, Damocles, and Ctesias. So Ptolemy is a geographer. He's a very famous geographer. Damocles was an ambassador in the court of Bindusar. Okay.
So you can also use the elimination technique. TCS has never been mentioned in the Indian history. So it is a very new name for you. So the answer is Pliny, but it is a very known fact that the national history book has been written by Pliny. So let's now move to the next question. Nyaya Darshan was propounded by whom? Who propounded the Nyaya Darshan? Gautam, Kapil, Badrayan or Jaimini? So Nyaya Darshan was propounded by whom? By Maharshi Gautam. Let's now move towards the next question. Shatrudi is the ancient name of which river? Which river in the ancient time or in the Rigvedic period was also known as Shatrudi? Ravi, Vyas, Yamuna or Satlaj? Which river was known as what? Shatrudi. So Satlaj was known as what? Shatrudi. So Vyas, Vipasa, Ravi, Parushni. These are the other names of these rivers. तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो अदर नेम्स है रिवर्स के, ये बेसिक एक चार्ट है जो आपको आपकी लूसेंट में भी मिल जाएगा. तो आपको ये एग्जैक्ट याद रखना है, क्योंकि एग्जाम की ये टेंडेंसी होती है कि वो पूछ लेता है कि कौन सी नदी जो है वो किस टाइम को एंशिएंट टाइम में क्या कहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच रूलर्स बिल्ड द फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा? राष्ट्रकूट, सातवाहन, कुषाण और चोलास. तो कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट्स ने जो है वो कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा बनवाया था. अब लिंगायत सेक्ट हाल ही में लाइक लास्ट ईयर बहुत ज्यादा न्यूज में था. तो लिंगायत सेक्ट इज अ पार्ट ऑफ विच रिलीजन? किस रिलीजन का पार्ट है लिंगायत सेक्ट? शैविज्म, वैष्णविज्म, बुद्धिस्ट और जैन. तो लिंगायत जो है वो शैविज्म का पार्ट है. ठीक है. अब वैष्णविज्म का भी पार्ट, शैविज्म जो है वो वैष्णविज्म का पार्ट है और शैविज्म का एक पार्ट क्या है? लिंगायत है. हालांकि ये सभी हिंदू फोल्ड में माने जाते हैं. बुद्धिज्म में आपको तीन सब पार्ट्स देखने को मिलेंगे, महायान, हीनयान और वज्रयान. ठीक है. तो ये डिफरेंट जो है क्या है, ये तीन पार्ट्स हैं या तीन सब डिविजन है बुद्धिज्म के. जैनों में आपको क्या देखने को मिलेगा? श्वेतांबर और दिगंबर, जो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस है. फिर और अगर आप जाएंगे तो तेरापंथी, समैया, अलग अलग तरह के लोग देखने को मिल जाएंगे. पर श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है. वैसे आप याद रखिएगा कि वैष्णविज्म में ही या हिंदुइज्म में ही एक सब पार्ट है वैष्णविज्म और शैविज्म, है ना. और उस शैविज्म का सब पार्ट क्या है? लिंगायत. तो लिंगायत अभी हालिया दिनों में बहुत ज्यादा न्यूज में था, इसलिए सवाल पूछा है. विच इवेंट हैज बीन कॉल्ड धर्म चक्र परिवर्तन इन बुद्धिज्म? है ना. किस इवेंट को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है बुद्धिज्म में? बुद्धास होम रिनंसिएशन, बुद्धास फर्स्ट सेरेमन, बुद्धास बर्थ और बुद्धास डेथ. किसको कहा गया है? तो बुद्धास फर्स्ट सेरेमन, जिन्होंने सबसे पहली बार जो प्रवचन दिया था, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? धर्म चक्र परिवर्तन. बुद्धास होम रिनंसिएशन इज नोन एज महाभिनिष्क्रमण. इज कॉल्ड एज महाभिनिष्क्रमण. बुद्धास डेथ इज कॉल्ड एज महापरिनिर्वाण. व्हाट? महापरिनिर्वाण. ठीक है. तो ये कुछ जो है मेजर जो है इवेंट्स एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा. वेयर डिड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट sermon? वही व्हाट? धर्मचक्र परिवर्तन. तो वो सबसे पहला sermon कहां दिया था? श्रावस्ती, गया, सारनाथ या सांची. तो सबसे पहला जो sermon है उन्होंने कहां दिया था? सारनाथ में, इन दी डियर पार्क, है ना. इसी sermon को हमने जो लास्ट स्लाइड में देखा है क्वेश्चन, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं. और वो धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र उन्होंने डिलीवर किया था. ठीक है. चलिए अगला सवाल आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल है कि बुद्धा गेव हिज sermon टू द मासेस इन विच लैंग्वेज? किस भाषा में उन्होंने अपना पहला sermon दिया था या किस भाषा में वो प्रीच कर रहे थे? प्राकृत, पाली, हिंदी या संस्कृत, है ना. तो ये चीज आप याद रखेंगे कि वो बेसिकली पाली लैंग्वेज का यूज कर रहे थे, है ना. और पाली लैंग्वेज जो है उस टाइम पे कॉमन पीपल्स की लैंग्वेज हुआ करती थी, पाली और प्राकृत. इसीलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुए. वो एक रीजन है. प्राकृत लैंग्वेज जो है वो जैनिज्म में यूज हो रही है ना. संस्कृत जो है वो ब्रह्मनिज्म में यूज हो रही थी, है ना. संस्कृत या दी गॉड्स लैंग्वेज, इट वाज यूज्ड इन ब्रह्मनिज्म. और हिंदी जो है वो बहुत लेटर डेवलपमेंट है इन दी हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी. ठीक है. चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. ये अगला सवाल. कृष्ण वॉज फर्स्ट मेंशन्ड इन विच उपनिषद? किस उपनिषद में सबसे पहली बार कृष्ण को मेंशन किया गया है? बृहदारण्यक, मल्ल,
छंदोग या श्वेतांबर? तो अब देखो, अब यहां पे अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप इस कंफ्यूजन में से दो ऑप्शंस को तो बहुत क्लियरली निकाल सकते हो, जैसे मल्ल और श्वेतांबर। मल्ल क्या है? मल्ल जो है एक जनपद था, ठीक है। अगर हम बात करें श्वेतांबर तो ये जैनिज्म का एक सेक्ट है, ठीक है। दो आंसर निकल गए, है ना। तो सबसे पहला जो मेंशन वो हालांकि छंदोग्य में है, और बृहदारण्यक जो है इट इज दी व्हाट दी मोस्ट वोलमनियस उपनिषद। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है टू सिट नियर फीट ऑफ, व्हाट, टू सिट नियर फीट ऑफ। जनरली ये नॉलेज लेने के लिए जब शिष्य गुरु के चरणों के पास बैठता है तो वो उपनिषद टर्म का लिटरल मीनिंग है। 108 उपनिषद हैं और इन्हीं उपनिषदों में से बहुत सारे महावाक्य लिए गए हैं। सत्यमेव जयते जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है, या जो और चार जो मेजर चार महावाक्य हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्म ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, ये भी जो है उपनिषद से ही लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वेयर इज तवांग मोनेस्ट्री, है ना। वेयर इज तवांग मोनेस्ट्री? बोध गया, अरुणाचल, लद्दाख और मैसूर। नाउ दिस तवांग मोनेस्ट्री हैज टू डू विद बुद्धिज्म। बहुत सारे जो है मोनेस्ट्रीज हैं या मठ हैं बुद्धिज्म के जो इंडिया में सिचुएटेड है, तो उसमें से तवांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। और एक फैक्ट जो आप बिल्कुल मोनेस्ट्रीज से याद रखेंगे, क्योंकि आए दिन दलाई लामा, हिज होलीनेस दलाई लामा इज इन न्यूज, है ना। तो दलाई लामा जो है वो रहते हैं नामग्याल मठ में। वो कहां रहते हैं? नामग्याल मठ में। और ये नामग्याल मठ कहां पे है? ये नामग्याल मठ है आपका धर्मशाला में। तो ये फैक्ट जो है बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, क्योंकि ये फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दलाई लामा फिर से न्यूज में है। ही इज द रिलीजियस हेड ऑफ व्हाट दी बुद्धिस्ट पीपल्स, ठीक है। तिब्बत के ये जो है अगर देखा जाए तो एक तरह से हेड भी थे। बस मुद्दा क्या है कि इनको जो है वहां से जब चाइना ने ऑक्यूपाई किया तो वहां से भगा दिया, एंड ही हैज टेकन एक्साइल इन इंडिया। रिसेंटली उन्होंने अभी एक आर्टिकल भी आया था जिसमें उन्होंने कहा है कि आई एम दी लॉन्गेस्ट व्हाट दी लॉन्गेस्ट विजिटर ऑफ व्हाट इंडियन गवर्नमेंट, की मैं सबसे लंबा विजिटर हूं जो इंडियन गवर्नमेंट ने मुझे रखा हुआ है। चलिए अगला सवाल। श्रोता सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र एंड शुल्वा सूत्र आर टाइप्स ऑफ विच वेदांग? एजुकेशन, ग्रामर, निरुक्त या कल्प? सो दे आर पार्ट ऑफ कल्प वेदांग, है ना। किसके पार्ट है ये? कल्प वेदांग के पार्ट है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट एंशियंट स्मृति? कौन सी स्मृति सबसे पुरानी समझी जाती है? यज्ञवल्क, विष्णु, मनु या नन ऑफ दीस? तो जो सबसे एंशिएंट स्मृति है वो है मनु स्मृति। ये काफी न्यूज में भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि मनु जो है वो सबसे पहले लॉ गिवर थे। ही वाज व्हाट? फर्स्ट लॉ गिवर। मनु स्मृति का क्रिटिसिज्म भी होता है, इसलिए भी बहुत न्यूज में रहती है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अगली क्या है? द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड अंडर हुज चेयरमैनशिप? सबाकामी, मोगलीपुत्र टिस, वसुमित्र या महाकसप्पा? किसकी चेयरमैनशिप में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी? तो इट हैपेंड अंडर दी व्हाट? मोगलीपुत्र टिस। तो यहां पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल तो हो गई, पर फर्स्ट और सेकंड के कौन है चेयरमैन, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। चलिए क्योंकि आंसर इन्हीं ऑप्शन में से कोई है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विशुद्धि मग्गा, विशुद्धि मग्गा इज अ बुक। हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक विशुद्धि मग्गा? बुद्ध घोष, बुद्ध दत्त, धर्म कीर्ति या दिननान? So the author of Vishuddhimagga is Buddha Ghosh. So let's now move towards next question. Horse is associated with which event of Buddha's life? And a horse is associated with which event of Buddha's life? Is it Buddha's birth? Is with youth, prosperity, or home renunciation? So it is associated with home renunciation because when Gautam Buddha was leaving his house, he left on his horse. उस horse का नाम था कंटक, and the charioteer who was riding his horse, his name was चन्ना। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारे सिंबल्स हैं जो उनकी लाइफ को सिग्निफाई करते हैं। जैसे लोटस जो है वो उनके बर्थ को सिग्निफाई करता है, ठीक है। हॉर्स जो है उनके होम रेनंसिएशन को सिग्निफाई करता है। फिर जो व्हील है वो किसको सिग्निफाई करता है? वो उनके फर्स्ट सेरेमन को सिग्निफाई करता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें स्तूप की, तो स्तूप जो है वो इनके डेथ या जो है किसको? महापरिनिर्वाण को सिग्निफाई करता है। तो ये अलग अलग सिंबल्स हैं विच आर एसोसिएटेड विद गौतम बुद्ध। फिर नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व। दिस इज अ वेरी यूनिक क्वेश्चन फॉर एमपीपीएससी।
According to the concept of Bodhisattva, what is the name of Buddha who is the destroyer of sins and evil? Maitreya, Alokiteshwar, Vajrapani या Shitigarh? So the answer is what? Vajrapani is what the slayer of sins and evil. ठीक है, तो बोधिसत्व जो है क्या है? बोधिसत्व बेसिकली वो व्यक्ति होता है, बोधिसत्व जिसके अंदर बुद्ध का एसेंस हो कि वो आगे चल के he will become what? He will become what you can say बुद्ध, है ना? तो एसेंस होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज बोधिसत्व. बहुत तरह के अलग अलग बोधिसत्वाज होते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. 23rd जैन तीर्थंकर पारसनाथ या पारसनाथ लेफ्ट हिज बॉडी एट पावापुरी, संवेद शिखर, माउंट आबू या सोनागिरी? कहां पे डेथ हुई थी पार्श्वनाथ की? सो इट इज संवेद शिखर. ही लेफ्ट हिज लाइफ वेयर एट संवेद शिखर. सो इज द 23rd तीर्थंकर. पहले तीर्थंकर कौन है? इट इज ऋषभ देव. ठीक है, या इन्हीं को आदिनाथ भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना. ठीक है, 23rd कौन है? पारसनाथ. और 24th तीर्थंकर कौन है आपके? वर्धमान महावीर. चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में. अगला सवाल है, इन जैनिज्म हाउ मेनी सिंस हैव बीन टोल्ड टू बी फ्री फ्रॉम गुड? है ना, 20, 22, 24, 18 कितने सिंस हैं जो अगर आप ना करें तो यू कैन बी फ्री फ्रॉम गुड? सो दे आर 18 नंबर. 18 नंबर ऑफ सिंस आर व्हाट देयर इन जैनिज्म. फिर हु कंपोज्ड हरिवंश पुराण? हरिवंश पुराण किसने कंपोज किया है? ठीक है, सो इट इज बीइंग कंपोज्ड बाय हुम? बाय जिनसेन. ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. Whose units were निष्क एंड सातमान इन दी लेटर वैदिक पीरियड? निष्क और सातमान किस चीज के यूनिट थे इन दी लेटर वैदिक पीरियड? मेजर, वेट, करेंसी या लैंड? तो निष्क एंड सातमान आर बेसिकली व्हाट? करेंसी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. वत्स महाजनपद कैपिटल वाज? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ वत्स महाजनपद? सो व्हाट? कौशाम्बी इज द कैपिटल ऑफ वत्स महाजनपद. अब आपका अगला टास्क है कि ये तीनों भी कैपिटल्स ही लिखी हुई हैं. कौन कौन से महाजनपद की कैपिटल्स है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ. चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी? उडाइन, नागदशक, शिशुनाग या अजातशत्रु? कौन है लास्ट रूलर ऑफ द हर्यंक डायनेस्टी? सो नागदशक इज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी. द फाउंडर कौन है? फाउंडर है बिंबिसार. बिंबिसार इज द फाउंडर. ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द अशोकास इंस्क्रिप्शंस द एनिमल सैक्रिफाइस इज कॉन्डेम्ड? फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ और सेवेंथ? किस अशोक इंस्क्रिप्शन में एनिमल सैक्रिफाइस को कॉन्डेम किया गया है? सो इट इज द फर्स्ट, है ना. सो द एनिमल सैक्रिफाइस हैज बीन कॉन्डेम्ड, बट रॉयल किचन को थोड़े बहुत जो है क्या थे उसमें लाइक एक्सक्लूजन्स थे कि रॉयल किचन में कुछ जानवर मारे जा सकते हैं. इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 13 तो बिल्कुल आपको याद रखना है क्योंकि इसमें कलिंग वॉर की जो है बातें अशोक ने की हैं. चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड द रिकॉर्ड ऑफ द क्वीन? है ना, किस इंस्क्रिप्शन को रिकॉर्ड ऑफ द क्वीन कहते हैं? रंपुरवा, रुमिंदेई, शारेकुना और कौशाम्बी? तो जो रिकॉर्ड ऑफ द क्वीन या क्वीन एडिक्ट है दैट इज द कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन. चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. हु वाज द फाउंडर ऑफ कण्व डायनेस्टी? कौन था कण्व डायनेस्टी का फाउंडर? देवभूति, सुशर्मा, श्रीगुप्त या वसुदेव? अब देखो इसमें से 3 रूलर तो जो है वो कण्व के ही दिए हुए हैं. यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको. एक एलिमिनेट कर दोगे, श्रीगुप्त. क्यों? क्योंकि ये गुप्त डायनेस्टी का था. ठीक है, बाकी देवभूति, सुशर्मा और वसुदेव तीनों ही है. तो आंसर है वसुदेव. कण्व इज द फाउंडर ऑफ व्हाट? द कण्व डायनेस्टी. चलिए अगली ओर बढ़ते हैं. धनवंतरी लिव्ड इन हुज कोर्ट? तो धनवंतरी किसकी कोर्ट में रहते थे? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? किसकी कोर्ट में थे धनवंतरी? तो धनवंतरी वॉज इन दी कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त. इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक धनवंतरी अवार्ड भी देती है, उसके बारे में भी जरूर पढ़ लेना अबाउट दी धनवंतरी अवार्ड. चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. हु इज द रीडर ऑफ सामवेद? सॉरी, व्हाट इज द रीडर ऑफ सामवेद कॉल्ड? होत्रा, उदगात्री, अध्वर्यु या नन ऑफ दीस? क्या कहते हैं? दी रीडर ऑफ सामवेद होत्री कौन है? जो ऋग्वेद में एक्सपर्ट है. ठीक है. अध्वर्यु कौन है? जो यजुर्वेद में एक्सपर्ट है. ठीक है. तो उदगात्री कौन होगा? जो सामवेद में एक्सपर्ट है. ठीक है. चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द फाउंडर ऑफ पल्लव डायनेस्टी? कौन है पल्लव डायनेस्टी का फाउंडर? महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन, सिम्हा विष्णु
या नंदी वर्मन? सो सिमा विष्णु इज द फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। ठीक है, ए होल इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू whom? पुलकेशिन फर्स्ट, कीर्तिवर्मन, यशोवर्मन या पुलकेशिन सेकंड? किससे जुड़ा हुआ ए होल इंस्क्रिप्शन? सो इट इज लिंक्ड विद पुलकेशिन सेकंड। ए होल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन सेकंड के जो कोर्ट पोएट थे रवि कीर्ति, रवि कीर्ति ने लिखा है और यहीं पे उन्होंने एक बहुत फेमस बैटल की बात की है, बैटल ऑफ नर्मदा। बैटल ऑफ नर्मदा की बात की है जहां हर्षवर्धन के कॉन्क्वेस्ट को जो है रोक देंगे कौन? आपके पुलकेशिन सेकंड। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ होशल्य डायनेस्टी? कौन थे फाउंडर? वीर भल्लाल, नृपकाम सेकंड, भीलम या रामचंद्र? तो होशल्य डायनेस्टी के फाउंडर है नृपकाम सेकंड, या इन्हीं को साल भी कहते थे। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच रूलर बिल्ड दी त्रिभुवन नारायण टेम्पल इन चित्तौड़? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धंगदेव, कीर्तिवर्मन, उपेंद्र कृष्णराज या राजा भोज? तो ये बनाया है राजा भोज ने बनवाया है व्हाट? त्रिभुवन नारायण टेम्पल। इसके अलावा राजा भोज ने और बहुत सारी चीजें बनवाई हैं, जैसे भोजशाला है ना, भोजताल, सिटी ऑफ भोजपुर, साथ में भोजपुर टेम्पल भी, सरस्वती विद्यालय का भी जो है उन्होंने क्या किया है? एस्टैब्लिशमेंट किया है। और साथ ही साथ जो आपकी क्या कहते हैं परमार डायनेस्टी है उसकी कैपिटल भी इन्होंने शिफ्ट की थी। कहां शिफ्ट की थी? वो शिफ्ट की थी आपके क्या कहते हैं उज्जैन से धार की तरफ, है ना। तो राजा भोज बहुत इंपॉर्टेंट, एज अ स्कॉलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी बहुत सारी किताबें हैं जैसे समरंगन सूत्रधार, चंपू रामायण, है ना, सरस्वती कंठभरणम, विद्या विनोद। तो ये किताबें भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हु फाउंडेड दी सोलंकी और दी चालुक्य डायनेस्टी? कुमारपाल फर्स्ट, मूलराज फर्स्ट, कर्ण फर्स्ट या भीम फर्स्ट? तो फाउंडर कौन है? मूलराज फर्स्ट इज द फाउंडर ऑफ दी सोलंकी डायनेस्टी। अगला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ प्रबंध चिंतामणि? प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी है? तो प्रबंध चिंतामणि लिखी है मेरुतंग ने। राजा भोज की बुक्स में आपसे डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, श्रीहर्ष और कृष्ण मिश्रा का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। हु क्रिएटेड दी बुक गाथा सप्तशती? किसने लिखी है गाथा सप्तशती? हाल, शातकर्णी, वसुमित्र या अश्वघोष? ठीक है, इसमें से तो अगर आप देखोगे तो दो रूलर्स हैं, दो स्कॉलर्स हैं, है ना। तो दो स्कॉलर्स जो हैं वो बुद्धिज्म के हैं। ठीक है, शातकर्णी तो रूलर है, शायद उसने कोई बुक लिखी होगी। ये बुक लिखी है हाल ने, है ना। हाल भी रूलर थे और उन्होंने ही जो बुक लिखी है व्हाट? गाथा सप्तशती। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इन विच इंस्क्रिप्शन अशोकास नेम इज फाउंड? मस्की एंड गुजरा, कौशांबी, शारेकुना और रुमिंदई? इनमें से कौन से इंस्क्रिप्शन में अशोक का नाम मिलता है? सो द आंसर इज मस्की एंड गुजरा। मस्की और गुजरा इंस्क्रिप्शन में मिलता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि अशोक मौर्य या अशोक नाम जो है ये केवल मस्की और गुजरा में है। बाकी जगह आपको जो नाम मिलेगा वो मिलेगा देव नाम पिय, है ना, बिलवेड ऑफ द गॉड्स या पियदसी। यही दो नाम आपको देखने को मिलेंगे रिगार्डिंग होम, रिगार्डिंग अशोक इन हिज इंस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी? काल अशोक, शिशुनाग, घनानंद या नंदीवर्धन? है ना, तो शिशुनाग तो फाउंडर ही हैं, लास्ट कैसे हो सकते हैं? ठीक है, धनानंद जो है इज लिंक्ड विद द नन डायनेस्टी। ठीक है, तो द आंसर इज नंदीवर्धन। नंदीवर्धन वाज द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। अगला, हु फाउंडेड द आजीवक सेक्ट? आजीवक सेक्ट की स्टैब्लिशमेंट किसने की थी? एक और फैक्ट याद रखना कि बिंदुसार जो है ही वॉज लिंक टू आजीवक सेक्ट। ये एक बहुत फेमस नाम है। पूरन कश्यप, संजय वेंतालीपुत्र, मखाली गोशाल या आचार्य अजीत केश कामलिम? तो ये जो है किसने? मखली गोशाल ने फाउंड किया है। आजीवक सेक्ट वालों का सिंपल सा मानना होता है कि जो कुछ भी होना है वो सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, जो होगा वो होगा ही, है ना। तो ये इनका बेसिकली फिलॉसफी है। ये भी एक हेटेरोडॉक्स सेक्ट है। ठीक है, इन विच स्टेट इज द हड़प्पन साइट लोथल लोकेटेड? ठीक है, राजस्थान, यूपी, हरियाणा या गुजरात? तो जो लोथल है वो गुजरात में है और ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये डॉकयार्ड था। ये क्या था? डॉकयार्ड। और ये कॉन्फ्लुएंस में है, साबरमती और भोगवा रिवर के कॉन्फ्लुएंस में है और यहां से डॉकयार्ड मिला है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कंदरिया महादेव टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन? पंचायतन, द्रविडियन, नागर या वेसर? तो सबसे पहला सवाल तो ये भी बन सकता है कि कंदरिया महादेव टेम्पल है कहां?
ये है खजुराहो में। कहाँ है? खजुराहो में। तो खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का एक टेम्पल है कनरिया महादेव। एज नेम सेज इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, और ये पंचायतन शैली में बना हुआ है, जो कि नागर स्टाइल का ही एक डिफरेंट वर्जन है। नागर स्टाइल के टेम्पल्स आपको जनरली नॉर्थ इंडिया में मिलेंगे, द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स आपको साउथ इंडिया में मिलेंगे, और ये जो वेसर स्टाइल है ये नागर, द्रविडियन प्लस नागर इज वेसर स्टाइल। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट पुराण, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण या मत्स्य पुराण? सो द मत्स्य पुराण इज द ओल्डेस्ट ऑफ द पुराणास। ठीक है, बहुत सारे पुराण हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ डेक्कन, इनमें से किस शहर को दक्कन की रानी कहा जाता है? पुणे, सूरत, खजुराहो, कोचिन। ठीक है, सो व्हाट पुणे इज कॉल्ड एज व्हाट? क्वीन ऑफ डेक्कन। क्वीन ऑफ डेक्कन ट्रेन भी चलती है, वो भी बहुत फेमस है, वो बात भी याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इन विच ईयर भारत रत्न वॉज गिवन टू आचार्य विनोबा भावे? 1983, 1984, 1975 या 1982? तो आचार्य विनोबा भावे को भारत रत्न 1983 में दिया गया है ना। आचार्य विनोबा भावे इज लिंक्ड विद द भूदान मूवमेंट। ये बात आप याद रखिएगा कि भूदान मूवमेंट जो है वो आचार्य विनोबा भावे से लिंक्ड है। ठीक है, हाल ही में कुछ दिनों पहले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख, है ना, और भूपेन हजारिका को भी भारत रत्न मिला है। तो ये बिल्कुल आप फैक्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा भारत रत्न के बारे में, है ना। कई बार एमपीपीएससी सवाल पूछ ही लेता है, इन पे अक्सर ही पूछता रहता है। ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट सीरीज on important questions which we have taken from where? From the Rozgar Nirman, and the probability of these questions being asked in your examination is high. So do practice these questions. So this was series 1. We will be coming up with the series 2 very soon. Till then, stay tuned, like, share, comment and subscribe. Till then, thank you everyone.